Hello students, it's Dr. Namita this side. Hope everyone is doing well. Today I'll make you understand about capital structure, meaning, concept of capital structure, features of a good ideal structure, and what are the theories underlying capital structure. Now students, we will see what is the meaning of capital structure, or we can say financial plan of the firm. It refers to the composition of long-term sources of funds such as debentures, long-term debt, preference share and equity capital including reserves and surpluses. When a firm is going to devise a capital structure, it will have to decide what is the relative proportion of all. That is long-term sources of fund जैसे कि equity, debt, preference capital, retained earnings. इन सभी sources का risk और cost of capital अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न है, different. For example, debentures are the cheapest source of funds, but riskiest of all. क्योंकि इंटरेस्ट को टैक्स कैलकुलेशन करते समय लाभों में से घटाया जाता है, इसलिए ये चीपेस्ट सोर्स बन जाता है. ऑन द अदर हैंड, इक्विटी इज नॉट रिस्की ऑफ ऑल, बट इज द कॉस्टली एज डिविडेंड इज मोर देन other sources. And preference capital, when we talk about this, it lies between these two, that is equity capital and debt. Firm has to devise a plan which gives maximum profit and minimum cost. और जहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम कॉस्ट हो जाते हैं अपने फाइनेंशियल प्लान को, जो फाइनेंशियल प्लान या फिर हम ये कह सकते हैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को डिवाइस करते हुए, तो वही प्लान फर्म का ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर बन जाता है. Students, now we will see what is the sound, appropriate or an optimum capital structure of a firm. Firstly, it should be simple and flexible. Simple in the sense that it should not be complex. There should be less securities. Flexible, how? It can be changed with less cost and in less time. Financial plan of a firm should have minimum risk and minimum cost of capital. Company should consider risk and cost of capital of its relative sources. It should be sufficiently liquid. कंपनी समय पर प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट की पेमेंट कर सके. ओनली देन द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म कुड बी कंसिडर्ड sufficiently liquid. There should be maximum profitability in its capital structure. यदि डिबेंचर्स पर कॉस्ट की तुलना में लाभ अधिक हैं, ओनली देन फर्म शुड गो फॉर डिबेंचर्स. नेक्स्ट कंसिडरेशन उसके फाइनेंशियल प्लान के अंदर ये होना चाहिए कि इट शुड बी लाइक दिस, that present shareholders are able to retain control over the company. Next one is, plan should be like this, that financial institutions doesn't impose unnecessary restrictions over the company. And the final one is that company must fulfill the legal requirements imposed by SEBI from time to time and should also comply by these restrictions that are imposed by SEBI. There are various theories of capital structure which indicate the relationship between capital structure decision of a firm and market value of the firm. There is also the difference of opinion whether capital structure decision affect value of the shares of the firm or not. Some experts say that it affects the value of the firm and others say that it doesn't affect. There are some thoughts given by David Durant, Ezra Solomon, Modi Gilani and Millen in the form of some theories, and which are net income approach, net operating income approach, traditional approach, approach, which we learn one by one. First one of these theories is net income approach, which states that there is a considerable relationship between value of the firm and capital structure. It states that any difference between debt equity ratio will bring change in the value of the firm and also average cost of capital. इसका अर्थ ये है कि जैसे जैसे डिग्री ऑफ लीवरेज बढ़ता जाता है, डिग्री ऑफ लीवरेज या फिर हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे डेट की मात्रा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे फर्म की कॉस्ट भी कम होती जाती है. इस डायग्राम के अंदर आप ये देख सकते हो कि हमने एक्स एक्सिस के ऊपर डिग्री ऑफ लीवरेज लिया है
और y axis indicates cost of capital. And on the upper side there is cost of equity, which is indicated by KE, which is maximum, and there is also in the lower side there is KD, that is cost of debt. Cost of debt is always lower than cost of equity, and in between these costs there lies overall cost of capital, which is indicated by KO. आप यहाँ से आपको स्पष्ट है ये डायग्राम देखने के बाद में कि जैसे जैसे डिग्री ऑफ लीवरेज बढ़ता जाता है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दैट इज KO ये भी कम होता जाता है, और जहां पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम होता है वो ही फर्म के लिए आदर्श पूंजी ढांचा कहलाता है। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम हो जाती है और फर्म की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। Next approach of capital structure is net operating income approach, and similar to net income approach, this approach is also given by Sir David Durand, and this net operating income states that capital structure decision is irrelevant for the firm, यानी ये महत्वहीन है, and capital structure of the firm does not affect the value of the firm at all. At any level of cost of capital, at any level of capital structure or financial leverage, cost of capital remains constant. इसका अर्थ ये है कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर या फिर डेट इक्विटी रेशियो हम कह सकते हैं कि भले ही ये 60:40 है, 50:50 है, या ये 70:30 है, हर एक लेवल पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वैल्यू ऑफ द फर्म रिमेन्स द सेम। डिग्री ऑफ लीवरेज को आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर। जैसे जैसे डिग्री ऑफ लीवरेज बढ़ता है, यानी कि डेट का प्रयोग या डिबेंचर्स का प्रयोग जैसे जैसे बढ़ता जाता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ती जाती है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ता है क्योंकि रिस्क ऑफ शेयर होल्डर्स इंक्रीजेस, लेकिन इससे कॉस्ट ऑफ डेट नहीं बढ़ती क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स का रिस्क नहीं बढ़ता है। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेट, इनके कॉम्बिनेशन से ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बनता है, और इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट ये होता है कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ द फर्म, और जो फर्म की वैल्यू है दैट आल्सो रिमेन्स द सेम। स्टूडेंट, नेक्स्ट अप्रोच गिवन इन दिस context is called as traditional approach. It is the midway between net operating income approach and net income approach. कुछ मामलों में ये नेट इनकम अप्रोच का समर्थन करती है और कुछ हद तक ये नेट ऑपरेटिंग इनकम को भी समर्थन करती है। कैसे? It supports net operating income, it supports net income approach in the way that capital structure affects cost of capital and value of the firm. ऐसा नेट इनकम अप्रोच के द्वारा कहा गया है कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वैल्यू ऑफ द फर्म दोनों को प्रभावित करता है, परंतु ये अप्रोच नेट इनकम अप्रोच का समर्थन इस मामले में नहीं करती कि हर लेवल पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी और वैल्यू बढ़ेगी। इस विचारधारा से ये भिन्न है। नेट ऑपरेटिंग इनकम को ये समर्थन करती है व्हेन इट सेज आफ्टर 1 point कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इंक्रीजेस, परंतु नेट ऑपरेटिंग इनकम से ये भिन्न भी है कि किसी भी मात्रा पर कॉस्ट कांस्टेंट रहती है। ऐसा नहीं है कि हर एक लेवल पर कॉस्ट कांस्टेंट रहती है, तो यहाँ पर ये कॉस्ट ऑफ जो है ये नेट ऑपरेटिंग इनकम से भिन्न हो जाती है। क्रक्स ऑफ द थ्योरी इज दैट विद जुडिशियस मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी इट कैन लोअर its cost of capital, means firm can lower its cost of capital. अब हम इस थ्योरी को अच्छी प्रकार से समझने के लिए इस डायग्राम का सहारा लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो x axis indicates degree of leverage and y axis indicates cost of capital. अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है O0 से A, ये हमारी फर्स्ट स्टेज कहलाती है, A से B सेकेंड, एंड देयर आफ्टर लाइज द थर्ड स्टेज। जैसे जैसे एक फर्म अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डेट को इंट्रोड्यूस करती है तो उसकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होती जा रही है।
आपको ये कर्व जो है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का KO, यहाँ से आपको ये एग्जिबिट हो रहा है। कॉस्ट ऑफ डेट कांस्टेंट है इस स्टेज के अंदर, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है इट इज ऑल्सो डिक्रीजिंग बट एट अ वेरी स्लो पेस। उसके बाद में सेकेंड स्टेज है A to B, फर्म की डिग्री ऑफ लीवरेज गोइंग ऑन इंक्रीज, और ज्यादा डेट को इंट्रोड्यूस कर रही है। यहां पर भी कॉस्ट ऑफ डेट कांस्टेंट है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कांस्टेंट हो जाती है, लेकिन कॉस्ट ऑफ इक्विटी इट हैज स्टार्टेड इंक्रीजिंग, क्योंकि अगर डेट की मात्रा बढ़ती जाती है तो इक्विटी होल्डर्स के लिए रिस्क भी इंक्रीज होता जाता है। उसके बाद में आती है हमारी थर्ड स्टेज है। थर्ड स्टेज में एक फर्म जब एक्सेसिव यूज ऑफ डेट शुरू कर देती है तो उसके जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं वो उनके लिए भी रिस्क बढ़ जाता है, वो भी पैनिक कर जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट इंक्रीज कर देते हैं। ऑन द अदर हैंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल वो तो पहले से ही बढ़ रही है और उसके बाद में वो और ज्यादा इंक्रीज करना शुरू कर देती है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेट, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बनता है KO, और इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट ये होगा कि इस स्टेज के अंदर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल ऑल्सो स्टार्ट इंक्रीजिंग। तो ये हमारी 3 स्टेजेस कहलाती हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इसमें से जो सेकेंड स्टेज है AB, ये हमारी आइडियल स्टेज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाती है, और यहाँ पर कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम होता है और फर्म के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी यहाँ पर मिनिमम है, और जो उसकी वैल्यू होती है फर्म के शेयर्स की वो इस स्टेज के अंदर मैक्सिमम कहलाती है। Next approach of capital structure is Maudie-Gilani-Miller approach, or commonly called approach. According to this approach, if taxes are ignored, this approach is similar to net operating income approach, and which states that capital structure decision and value of the firm has no relationship at all. कि firm का जो capital structure है वो firm की cost और firm की value को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करता है, और यही बात नेट ऑपरेटिंग इनकम के द्वारा कही गई है। लेकिन दिस थ्योरी गिव्स सम लॉजिक टू प्रूव इट्स पॉइंट। इस थ्योरी के अनुसार ऋण के अधिक प्रयोग करने से कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाती है, क्योंकि शेयर होल्डर्स का रिस्क बढ़ जाता है, और डेट क्योंकि सस्ता सोर्स होता है, चीप सोर्स है, बढ़ी हुई कॉस्ट ऑफ इक्विटी न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ use of debt, and the combined effect of cost of equity and cost of debt is that overall cost of capital remains constant, and so does the value of the firm. Thank you all and take care.